Hello, good morning students. How are you all? Hope you all are fine. Students, you know that we are revising chapters and today chapter is time and calendar and our topic is time duration. Time duration. Today our topic is time duration. We will discuss about the time duration. Okay students, so get ready and open your book, page number 90, time duration. Listen, time duration tells us how long it takes for an activity to complete. Okay. Okay students, are you getting? Aditi, Harshit, you all? Time duration tells us how long it takes for an activity to complete. Are you getting? No. Are you getting? What is this sentence I am saying? Are you getting? It means I am teaching you. How long I have teach you? Okay? From 10 to 10:30. 10 to 10:30 example. I am teaching you from 10 to 10:30. 10 to 10 o'clock to 10:30 o'clock. 30 o'clock. Okay? Then what is the time duration of my teaching? What is the time duration? Then how we will find it time duration? Tell me, what is the time duration? What is the time duration? What is the time duration? No. What is the time duration? Time duration is 10:30 minus 10. 0. It means only 30 minutes. What is time duration? 30 minutes. Only 30 minutes. Okay? Again, try to understand. टाइम ड्यूरेशन उसे कहते हैं बेटा, जैसे हम कोई कार्य करते हैं, अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और कितना उसमें समय लगा, उसी को हम टाइम ड्यूरेशन कहते हैं. आधे घंटे लगा, 1 घंटे लगा, 10 घंटे लगा, 20 घंटे लगा, उसी को क्या कहते हैं? टाइम ड्यूरेशन कहते हैं. ओके? तुम यहां से निकले, अपने घर से निकले, ठीक है, 1 बजे, 1 o'clock पे घर से निकले, ठीक है, और मार्केट पहुंचने में तुम्हें समय लगा कितना? 1:30 पर तुम मार्केट पहुंच गए, तो टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ? 30 मिनट. 30 मिनट लगा तुम्हारा. टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ? 30 मिनट. तुम्हारे पीरियड का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है जो क्लास चलता है? 45 मिनट. इसे कहते हैं ना ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, अवधि. ओके, तो जो
किसी भी कार्य को करने में, जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें जो समय लगता है उसी को हम टाइम ड्यूरेशन। अंडरस्टैंड? इट्स क्लियर? So do this question. I will ask you. Tell me the time. Vani get up. Vani gets up at 6 o'clock. At 6 o'clock in the morning. In the morning. In the morning. Okay. And leaves for school at 7 o'clock. And leaves for school at 7 o'clock. Okay. Question as given. First question. Next question as given. She reaches school at 8 o'clock and comes back home at 12 o'clock. 12 o'clock पे घर वापस आती है in the afternoon. Okay. देखो, after coming home, घर आने के बाद, after coming home, she plays with her doll house from 3 o'clock to 4 o'clock. 3 o'clock से 4 o'clock तक वह अपने डॉल के साथ खेलती है. She does her homework from 4 o'clock to 7 o'clock. 4 o'clock से 7 o'clock तक अपना होमवर्क करती है. She eats her dinner from 8 o'clock to 9 o'clock. वो अपना डिनर कितने बजे करती है? 8 o'clock to 9 o'clock तक डिनर करती है. She goes to sleep at 10 o'clock. She goes to sleep at 10 o'clock. अब 10 o'clock पर स्लीप करने चली जाती है. अब क्वेश्चन दिया है. Now question has given time duration for homework. Time duration for homework. Tell me, what is the time duration for homework? Huh? After coming home, she plays with her doll house from 3. Time duration. Where is? She does her homework from. She does her homework from 4 o'clock to 7 o'clock. 7 o'clock. Okay. 4 o'clock to 7 o'clock. अब 4 o'clock से 7 o'clock तक वो अपना होमवर्क करती है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना? होमवर्क का टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ? What is the time duration of her homework? What? 7 minus 4 is equal to 3. 3 hours. 3 hours. 4 से लेकर 7 तक करती है, तो कितने देर तक बैठ कर होमवर्क करती है? तो जो कार्य किया उसी को तो टाइम ड्यूरेशन कहते हैं. जितने देर तक कार्य किया, या सोया या गाया, नहाया, खाया, पिया, जो भी किया, दैट इज द टाइम ड्यूरेशन. मतलब कोई पूछे कि तुमने अपना लंच कितने देर में कर लिया, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर योर टेकिंग लंच? तुमने कहा 5 मिनट, क्योंकि इतने बजे से इतने बजे तक हमने 10 मिनट, इतने मिनट में हमने कर लिया इसके टाइम के अंदर. ओके, दैट इज टाइम ड्यूरेशन. तो इसने होमवर्क कितने समय में किया? 3 आवर्स में. तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ? टाइम ड्यूरेशन फॉर होमवर्क इज इक्वल टू 3 आवर्स. माइनस करना समझ गए? किस तरह से माइनस करेंगे? हाउ वी विल सब्ट्रैक्ट? जो लास्ट वाला टाइमिंग होगा उसको पहले लिखेंगे, जो पहले वाला टाइमिंग होगा उसको बाद में लिखेंगे. ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम शी स्पेंड इन स्कूल एवरी डे। टाइम शी स्पेंड, टेल मी, टाइम, डोंट चीट, टाइम शी स्पेंड इन स्कूल एवरी डे। टाइम शी स्पेंड, प्रत्येक दिन कितने आवर वो स्कूल में टाइम स्पेंड करती है। पहले तो निकालना पड़ेगा, कैसे 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 पता चला 4 आवर, टेल मी। शी रीच एट स्कूल एट 8 o'clock and she come back at 12 o'clock. Then 12 minus 8 is equal to 4. 4 hours. 4 hours. It means she spent time 4 hours. Okay? Clear? चलो, okay. For how long does she sleep? For how long does she sleep? For how long does she sleep? Huh? Tell me, how long does she sleep? अब हमें बताओ तुम लोग, टेल मी। यही वाला नहीं आ रहा, ओके। देखो कितने बजे सोती है वो, 10 o'clock को सो जाती है, हाँ 10 o'clock, हाँ एट नाइट में सोती है, और 6 o'clock पे 6 o'clock, no, here we will use the mind, no, ये 6 है, इसको 6 o'clock को हम रेलवे टाइम में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? रेलवे टाइम क्या कहता है? 9, जब यहाँ 12 होता है ना, 12 के बाद जो 1 आता है, क्या बोलते हैं रेलवे टाइम में? 1, देखो 1, 12 बाद 1 आता है ना, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमारी घड़ी की सुइयां चलती हैं। लेकिन रेलवे टाइम में ये 12 के बाद क्या आ जाता है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अब यहाँ 18 बज रहा है। रेलवे टाइम 24 बजाता है, ठीक है? ऐसे ऐसे चलता है। तो 6 जो टाइमिंग है हमारा कितना बता रहा है? 18, यानी कि 18 o'clock, 18 o'clock। 12 से हम 13, 14 पर आ गए, 1 to 6 नहीं आएंगे, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा। ओके, अब देखो 6 जगह पे क्या आ गया? 18 आया। अब 18 minus 10 करेंगे हम, क्या करेंगे? 18 minus 10, 18 minus 10 करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 आवर, 8 आवर। कितने देर तक सोती है? आ गया? कैसे निकाले? समझ में आया? वेरी गुड, ऐसे निकालेंगे। ओके, जब रात के बाद की बात होगी तो फिर हम 12 के बाद, जब टाइम ड्यूरेशन ऐसे पूछ दे 12 के बाद का, तो हम वो 13, 14 वाले सिस्टम अपना लेंगे। ओके, नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, आंसर आएगा ही नहीं सही। ओके, अब कंफ्यूज रहोगे।
Okay students, are you getting? समझ में आ रहा है? Okay. Here I have given some question. Back side. Turn your page. 2 question is given. So, question number 2. Suman started preparing dinner for a party at 4 o'clock and ended at 9 o'clock. एक पार्टी के लिए सुमन जो है प्रिपेयर कर रही है डिनर. स्टार्ट कितने बजे करती है? 4 o'clock और एंडेड कितने बजे होता है? 9 o'clock. हाउ लॉन्ग डिड शी टेक टू प्रिपेयर द डिनर? कोई नहीं बोलेगा. अंश, वो कितना समय डिनर बनाने में लेती है? स्टार्ट कितने बजे करती है बेटा? 4 o'clock. ओके. एंड एंड कितने बजे करती है? 9 o'clock. नो, फर्स्ट यू टेल हाउ मच टाइम शी हैज टेकन. वो कितना समय लिया उसने डिनर को बनाने में? कितना समय लिया? आयुष 5 hours. You? Aditi? 5 hours. You? 5 hours. How you have got 5 hours? Huh? 9 minus 4. 5 hours. Good. Very good. Sit down. Next question. Naira started preparing for a test at 9 o'clock. नायरा जो है started preparing, तैयारी कर रही है टेस्ट के लिए 9 o'clock and she finished studying at 11 o'clock. 9 o'clock पर स्टार्ट किया है, 11 o'clock पर फिनिश कर दी है. What is the time duration of preparing Naira? Tell me. Yes. Huh? 2 hours. Very good. 11 minus 9 is equal to 2 hours. 2 hours. Okay. So you will revise, and this type of question may be come in your annual exam. So prepare yourself and revise your chapter, students. So thank you for today. Have a nice day.